Welcome students. Today we will solve some problems related to the vectors. So our first problem is, which one of the following which one of the following is a scalar quantity? So options are number A, velocity, number B, acceleration, option number C, speed, and option number D, that is momentum. Okay, so in case of scalar and vector, we know that what is basically scalar quantity? The physical quantity which have only magnitude are called scalar quantities. So when we are discussing about velocity, so velocity, the formula for the velocity is displacement upon time. Displacement upon time. So displacement is here basically the motion of a body in particular direction. So there will be the direction. So velocity is a vector quantity. In case of acceleration, so we have formula that is velocity upon time. So this is also a vector quantity. Then speed is a distance upon time. Distance upon time. And momentum is the product of mass and velocity. So when we are discussing about all this quantity, at that time the only quantity which have only magnitude, that is speed. So here you can say that speed is a scalar quantity. यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. तो स्पीड के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का ज़रूरत होता है, वहाँ डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं होता है. तो स्पीड, ये आंसर हमारा फर्स्ट एमसीक्यू का है. लेट्स सी सेकंड वन. Today is our second problem, second MCQ. Which one of the following is vector quantity? Which one of the following is a vector quantity? लास्ट टाइम हमें पूछा था स्केलर कौन सी है, अभी यहाँ पे हमें पूछा है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है. सो सिमिलरली द फोर ऑप्शंस आर अवेलेबल. फर्स्ट इज मास, सेकंड इज डेंसिटी, नंबर सी इज इलेक्ट्रिक करंट, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है यहाँ पे इम्पल्स. So now we will discuss about this MCQ. See here, we know that mass is measured in kilogram, and for measurement of mass there is no need of direction. So mass is a scalar quantity. Density is having formula mass upon volume. When we are measuring density, we require mass and volume. So it does not require direction. So therefore it is also a scalar quantity. Electric current is also a scalar quantity. In some cases it is also known as tensor quantity. It
वी नो दैट, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट पर्टिकुलर डायरेक्शन वगैरह फ्लो होता है, लेकिन वो वहाँ पे जो वेक्टर के लॉज है वो ओबे नहीं करता है, इसलिए हम उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और उसे सम केसेस में टेंसर क्वांटिटी भी हम उसे कहते हैं। लेकिन जो इम्पल्स है, ओके, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू टाइम है। तो जो शॉर्ट इंटरवल के लिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल जब एक आधा फुटबॉल आता है और अब हम उस पर किक मारते हैं, तो वो क्या होता है, इम्पल्स होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। हियर वी नो दैट फोर्स इज अ vector quantity and therefore impulse is also a vector quantity. So option number D, that is impulse, is our answer. So let's see next one. So जो impulse है वो क्या है, vector quantity है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, impulse. So let's see next one. Number third, the magnitude of vector cannot be the magnitude of vector कैन नॉट बी। जो वेक्टर का एक पर्टिकुलर जो वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड वो नहीं हो सकता, ये हमें पूछा है, कैन नॉट बी। सो नंबर ए ऑप्शन इज 0, ऑप्शन नंबर बी इज 1, ऑप्शन नंबर सी इज पॉजिटिव, सो ऑप्शन नंबर डी is negative. So when we are discussing about magnitude of the vectors, that time we know that, so particularly एखादा जो वेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, वो हम लिखते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इस फॉर्म में। लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है वो मॉड में हम लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज गिवन एज रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। तो इसका आंसर 1 आ सकता है, पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये निगेटिव नहीं आएगा। सो जो ऑप्शन नंबर जो डी है, निगेटिव, दिस इज अवर आंसर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी निगेटिव। ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं निगेटिव होगा, जब भी हम स्क्वायर लेते हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी का, ए एक्स का लेंगे, ए वाई का लेंगे, ए जेड का लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, सो जब गिवन वेक्टर में कुछ वैल्यूज सेम होंगी और उस टाइम हम देख सकते हैं कि वो उसका जो वैल्यू होगा जो भी पॉजिटिव आ सकता है, सम केसेस में इसका जो आंसर है वो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द वेक्टर, लेकिन ये निगेटिव नहीं आएगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट वन। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता है, कैन नॉट बी पूछा है हमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। So what is the magnitude, what is the magnitude of the sum of the vectors of the sum of vectors, vector p 3i and vector q, that is 4j। तो इसका हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ऑप्शंस आर गिवन, नंबर ए 3, नंबर बी 4, नंबर सी
5, and option number D is 7. In case of magnitude, we know that the magnitude of the वेक्टर कैन बी गिवन एज वेक्टर p प्लस वेक्टर q. सम दिया है, यहाँ पे हमें एडिशन करना है, सम करना है. तो ये जो हम मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे, पहले हम इसका वैल्यू लिखेंगे 3i प्लस 4j है. ये हमें ये दो वेक्टर दिए हैं, तो इसका जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस मॉड ऑफ प्लस वेक्टर q. ये मॉड में जाएगा, तो जब मॉड में जाएगा तब यहाँ पे हम लेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला टू मैग्नीट्यूड. सो इट विल बी 9 प्लस 16. तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 25 और इसका आंसर हमें मिलेगा 5. ओके, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. तो पर्टिकुलरली आप जब इसे देखेंगे 9 प्लस 16 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25. तो जब स्क्वायर रूट ऑफ 25 लेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा. बहुत ही ईजी सम था ये. नेक्स्ट वन. Okay, so these are the very basic problems related to the our scalar and vector quantities. Next one. I think number 5 is next one. A vector is represented by a vector is represented by a vector is represented by vector p, that is 3i plus j plus 2k. What is its length? What is its length in the xy plane? In the xy plane. So option is number 2. Option number B is root 5. Option number C is root 10. Option number D is root 15. Okay, see here. So a vector is represented by vector p का जो वैल्यू हमें दिया है वो दिया है 3i प्लस जे प्लस 2k. तो यहाँ पे जब हम वेक्टर p के बारे में सोचते हैं, a vector is represented by vector p 3i plus j plus 2k. What is its length in xy plane? तो x के लिए जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, i होता है, और जो y के लिए जो कंपोनेंट होता है क्या होता है, j होता है. तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो 3i प्लस j है उसके बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि हमें xy प्लेन के बारे में बताया है. विच प्लेन मेंशन्ड, दैट इज xy प्लेन. ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. सो दिस विल बी 9 प्लस 1. सो आवर आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 10. तो ये जो है हमारा आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 10. ऑप्शन नंबर सी is our answer. Let's see next one. Okay, so next problem is, if two vectors if two vectors
So vectors are given. Vector a1 I minus 3j plus 5k and a2, that is I minus 3j plus ak are equal, then the value of a is, then the value of a is, see here, number a is plus 5, b is minus 5, c is minus 3 and d is, that is 2. So it's a very easy one. Okay, see here, जब हमें दो वेक्टर दिए हैं तब हमें ये मालूम होना चाहिए, जब वेक्टर ए होता है तो उसके कॉम्पोनेंट ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के होते हैं, और वेक्टर बी होता है उसके कॉम्पोनेंट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के फॉर्म में होते हैं. व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल, इक्वल मेंशन किया है, जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तब उनके जो करेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट है, यानी ए एक्स का वैल्यू इक्वल होगा बी एक्स से, देन ए वाई का वैल्यू इक्वल होगा बी वाई से, और ए जेड का वैल्यू इक्वल होगा बी जेड से. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आई के साथ यहाँ पे है, सी हियर, ये जो आई है इसके साथ यहाँ पे आई है तो यहाँ पे 1 1 है. नेक्स्ट है -3 है, तो ए के जगह कौन रिप्लेस होगा वहाँ पे 5. तो जो हमारा आंसर होगा फाइनली, सो ए इज इक्वल टू 5. वी हैव टू जस्ट कंपेयर the components of particular value. So here is a 5k and here is a ak. Therefore instead of a we have to write there 5. So the value of a will be 5 and it is plus 5. Therefore option number a is, sorry, therefore the option number a plus 5 is the right answer. So let's see next one. Now in next problem they are mentioning three forces. See here, three forces acting on particle are given by 2i plus 3j minus 2k. Next force is given, that is 3i plus j minus 3k, and next one is minus 5i minus 2j plus k. So units of force are Newton. म्हणजे ये ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर, सॉरी, these are the three forces acting on particle are given by. So ये जो 3 forces मेंशन किए हैं उनके लिए जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा. सो अभी तक हमारा प्रॉब्लम नहीं खत्म हुआ है. द पार्टिकल विल मूव in. Now the options are given. Option number A is XY plane. Option number B, YZ plane.
option number C, that is xz plane, and option number D, that is given along x-axis, along x-axis. See, so basically there are three forces. So 2i plus 3j minus 2k plus 3i plus j minus 3k minus 5i minus 2j plus k. So basically we have to add all these forces. So let's consider first force is F1, next one is F2 and third one is F3. तो ये जो थ्री फोर्स एक्ट हो रहे हैं इसलिए हम उसका एडिशन करेंगे, तो पर्टिकुलरली इसके लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा 2i प्लस 3j माइनस 2k प्लस 3i प्लस j माइनस 3k माइनस 5i माइनस 2j प्लस k. तो ये जब हम इसका एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2i, पर्टिकुलरली इस तरह से एडिशन करना पड़ेगा. ये 2i प्लस 3i ये हो जाएगा 5i माइनस 5i. सो दिस विल गिव्स अस 0, पहला वैल्यू 0 आ गया. उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे 3j प्लस j ये हो जाएगा 4j माइनस 2j ये हो जाएगा 4j माइनस 2j ये हो जाएगा 2j. तो यहाँ पे आ जाएगा 2j minus 2k minus 3k that will be minus 5k minus 5k plus k that will be minus 4k. So our answer is 2j minus 4k. क्या है 2j minus 4k, ये हमें आंसर मिला है. तो 2j minus 4k है. तो बेसिकली j के लिए कौन सा एक्सिस होगा, j के लिए होगा y एक्सिस और k के लिए कौन सा एक्सिस होगा z एक्सिस. So our answer will be option number B, that is YZ plane. ओके, YZ plane ये हमारा आंसर होगा. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, YZ plane. ओके, तो इस तरह से हमने आज जो कुछ MCQ है वो सॉल्व किए हैं. तो आई होप you understood all these MCQs, and in next lecture we will see another examples. Already there are some lectures are uploaded about vectors, so you can watch from our channel. So thank you for watching.